Now, courtesy Shark Tank, Aman or Vinita? Oh, ये तो controversial है. Chach or lassi, courtesy Happy Nature. Movies or web series? That's a young answer. Sattu or protein shake? Today, on Food Safety Day, we have gathered here. We have 5 different founders, 5 reputed founders from our dairy industry with their 5 reputed brands. So we would want them to introduce you to you all. Sir, please start. नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ है और मैं बरोसी का फाउंडर हूँ. बरोसी में हम दूध, घी, गुड़, पिकल और कोल्ड प्रेस ऑयल्स और ऐसे वो सारे प्रोडक्ट जिनकी सप्लाई चेन भारत में है, रूरल में है, विलेजेस में है, वो सारे प्रोडक्ट हम वहाँ पे बनाते हैं या प्रोड्यूस करके, और जो नए न्यू एज इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनके पास तक डायरेक्टली डिलीवर करते हैं. धन्यवाद. Thank you so much. So please. I'm Gajendra. I'm basically a dairy farmer and I run a dairy brand by name of Forest Organic Milk. So I'm basically very much into dairy for last 10 years. It all started with rearing of cattle followed by the brand, and now I think we all here are running almost the same kind of premium milk brands in dairy here. I'm Siddharth Milan. Basically, I'm also a dairy farmer. और बेसिकली मैं भी क्या करता हूँ, कई सारे ब्रांड्स के लिए पैकेजिंग करने लग रहा हूँ और कई सारे डेयरी फार्म्स को मैनेज करने लग रहे हैं. मैनेज इन द सेंस की उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे मिनिमाइज हो ताकि क्वालिटी मिल्क उनसे हम ले सकें. Okay, thank you, sir. Please. Hi, I'm Krishna. I'm a cricketer turned engineer turned management professional turned into an entrepreneur. बस वोट मांगना रहता है. And so I run a company called OK India Organic Kitchen. We're solving the problem of organic food in India. So we are primarily into fruits and vegetables, working in Delhi NCR. Hi, this is Vishal Rastogi. I am from Happy Nature. We are a direct-to-consumer breakfast essential company with the thought process of bringing whatever comes to your door is basically a clean label product, so that we can, when you consume that food, you are rest assured that there is no chemicals going inside your body, which starts from dairy all the way to other breakfast essentials, and that's the thought process on which we are building a brand. Thank you so much, sir. Thank you all for being here, sparing some time out for this conference. Let's start with our first round, which is going to be industry-based. And I'm going to be asking you some questions regarding the dairy industry. And we would love to hear your experience and for the benefit of our audience. So let's go ahead. So first question will be for you, sir. Sir, आपको क्या लगता है कि फूड सेफ्टी हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है या फिर डेयरी इंडस्ट्री पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो देखिए, फूड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि फूड सेफ्टी तो बहुत ही नो ब्रेनर है. जो भी आप ब्रांड की भी जिम्मेदारी है और कंज्यूमर तो कम से कम उतना एक्सपेक्ट करता ही है कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो विदाउट एनी केमिकल होने चाहिए, उसमें गुडनेस होना चाहिए. बट अगर आप स्पेसिफिकली कहते हैं कि डेयरी और नॉन डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर रही है और हमेशा से रही है दूध को लेके कि दूध में मिलावट है या प्रॉब्लम्स हैं. एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर ही है कि अगर आप यहाँ पे जितने भी जो हम लोग बैठे हुए हैं डेयरी के ब्रांड्स हैं, जहां पे हम अपनी जगह बना पाए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंज्यूमर के दिमाग में बहुत क्लियर था. करेक्ट. और दूध, अगर हम इंडियंस की बात करते हैं तो हम इतने क्रेजी हैं हम एज ए इंडियंस कि हमारी सुबह जो है वो चाय से स्टार्ट होती है. रात का एक गर्म दूध हमें अगर ग्लास में ना मिले तो हमें नींद नहीं आती है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. तो स्पेसिफिकली अगर आपको ये इसका आंसर चाहिए तो मेरा आंसर ये है कि डेयरी के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सेफ्टी को लेकर. Very rightly said, sir. Thank you so much. Sir, the question for you is that food safety measures जब इंश्योर करती है एक कंपनी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है. सो कैसे कन्विंस करते हैं आप कंज्यूमर्स को एक हाई प्राइस प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और क्या कंज्यूमर वो प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है? So actually this can be addressed in 3 different ways. One is
when you as a company, you as a brand, when you make sure that food safety or the better quality standards are adhered to, the cost of production goes up. That is again a no-brainer. But when you go out in a market and convince people about it, especially when we talk about Indian market, which is not that strictly regulated, you are doing something genuine and you convey this to the consumers. But there are people in market who are not doing the same thing, but they convey and they claim the same. So from the consumer point of view, it becomes very difficult to get trust or get a validated brand in their kitchen, which is genuinely genuine. Now, and why I say this is because Indian food system is not strictly regulated. Okay. So जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, जब रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं. Right. And that is basically a misleading campaign, that is a misleading claims. तो वहाँ कंज्यूमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन की वजह से होता क्या है कि जो ब्रांड जेन्युइन काम कर रहे हैं वो सफर करते हैं. थर्ड थिंग इज बड़े से अगर आप सिर्फ डेयरी की बात करें, फूड एज ए होल ना करके सिर्फ डेयरी की बात करें, तो बहुत ही बेसिक से पैरामीटर्स है जो कंसिडर नहीं करे जाते, एज पर FSSAI कंसिडर नहीं करे जाते इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल सोमैटिक सेल काउंट, एफ्लाटॉक्सिन, ये बड़े बेसिक पैरामीटर्स हैं जो गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप मॉनिटर करें, या कोई भी ब्रांड मॉनिटर नहीं करता है. बहुत छोटे लेवल पे कोई ब्रांड अगर करता है तो करता है, बट नहीं करता है, कंज्यूमर को भी फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से. नाउ ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू adhere to, obviously the cost of production goes up and that eventually passes to the consumer. But convincing वाला जो आपका क्वेश्चन है वो वहीं आके it becomes difficult. It becomes not from the brand point of view, it becomes difficult from the consumer point of view as well, that who is the genuine one. Very true, sir. For Siddharth sir, my question is that जहाँ सब लोग अपना एक क्रॉसब्रीड काउस का फार्म सेटअप करना चाह रहे थे, आपने देसी काउस का फार्म सेटअप करने का किस तरह सोचा? देखो, इंडिजिनस ब्रीड जितनी भी हैं वो कभी से तो हमारी कंट्री में रहती है. अब उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल रहने के लिए क्रॉस ब्रीड्स जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनका क्लाइमेट अलग है, यहाँ पे अलग है. यहाँ पे उन प्रोड्यूस करते हैं तो एल्ड के साथ उनके साथ जो डिजीज है वो भी हमारे पास आने लग रही है. प्रोडक्टिविटी मैनेज करने में इशू आता है. अब एक कैटल है जो 40 लीटर डे देने लगी है, एक दूसरी कैटल है जो 10 लीटर देने लगी है. अब जो 40 लीटर देने लगी है उसको डाइट भी 40 लीटर के हिसाब से दी जाएगी. अब या तो 50 किलो को उसी 24 घंटे में डाइजेस्ट करे, या फिर वो 10 किलो वाले को 15 kg दिया हमने, वो भी उसी 24 घंटे में डाइजेस्ट कर रहे हैं. तो हमने क्रॉस ब्रीड को काफी सारी चीजें बाईपास देनी पड़ती हैं, जैसे बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है, वो डायरेक्टली मिल्क में आने लग रहा है. ठीक है. अब उससे डिजीज भी बहुत सारे क्रिएट होने लग रहे हैं. तो इसलिए प्योर और क्वालिटी मिल्क के लिए हमने देसी पर फोकस किया. Okay, convincing enough, sir. Thank you. Now coming to you, sir. So basically, your brand deals with fruits and vegetables. So how do you basically differentiate with the dairy products? How do you combine and differentiate both at the same time in the same industry? How do you do that? Right. So दोनों ही बहुत differently work करते हैं. Like I said कि dairy is something which is primarily production based, कि आपने एक जगह पे कैटल के साथ प्रोड्यूस करें and you ensure कि वो पूरा end to end pure है. I think हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सबको उद्देश्य यही है कि घर का खाना शुद्ध होना चाहिए eventually. जो पहले चलती आ रही थी कि हमने इतना टेक करा, we come so much far as a civilization, but eventually हमने चीजें impure कर दी, right? तो अब हम सब उस सेम दिशा में हैं कि हम घर का खाना शुद्ध करना चाहते हैं. सो डेयरी की शुद्धता एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपकी प्रोसेसेस कैसी हैं पोस्ट मिल्किंग, राइट? दैट इज समथिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है. F&B में क्या है? F&B इज समथिंग जो कि एक जगह पे नहीं करी जा सकती, आपको अलग अलग जगह से चीजें करनी पड़ती हैं. अब आपको गोभी मिलेगी से जींद में, आपको अनार मिलेगा अलग शहर में, आपको सोलन में मिलेगा एप्पल, आपको नागपुर में मिलेंगे संतरे, राइट? सो हर चीज की क्वालिटी मेंटेनेंस एंड फूड सेफ्टी डिफरेंटली होगी, राइट? तो जब हम बात करते हैं F&B की, so F&B में हम लोग प्री प्रोक्योरमेंट क्वालिटी चेक्स करते हैं, सो दैट इवन बिफोर बाइंग वी नो कि इसकी शुद्धता किस तरह की है.
एंड आफ्टर वंस वी प्रोक्योर तो सारी चीज आ जाती है कि अब ये सब खाना है, राइट? नाउ दिस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, डिस्क्रेडिटेड। सो उस पे हमारा ब्रांड वर्क करता है कि अगर वो अलग अलग ग्रेड का सामान है तो B2C में क्या जाए, B2B में क्या जाए, रेस्टोरेंट में क्या जाए। सो जीरो फूड वेस्टेज एंड घर का खाना शुद्ध हो, दैट इज समथिंग इट शुड बी वर्कड अपॉन। डेयरी में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आई एम वेरी ग्लैड कि आई एम privileged enough to sit with people who are solving this problem, and F&B में भी हम सेम चीज सॉल्व कर रहे हैं। Incredible, sir. Now coming to Vishal, sir. Sir, startups आज की डेट में जो आ रहे हैं वो किस तरीके से फूड सेफ्टी के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, एंड ये प्रोडक्शन से लेकर एंड कंज्यूमर डिलीवरी तक इन चैलेंजेस को कहाँ और किस तरीके से केटर किया जाता है? सो जिसमें दो सवाल हैं। पहला है कि आज के दिन में स्टार्टअप्स कैसे इन चैलेंजेस को हैंडल कर रहे हैं, और आज की डेट में अगर आप देखें तो फूड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। जैसे प्रशांत ने बोला कि हमने अपने खाने को एक तरह से उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी थी ओवर प्रीवियस डेकेड्स, जिसकी वजह से उस समय की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारी सप्लाई चेन, हमारी पैकेजिंग, हमारी सब चीज़ें कंस्ट्रेंट्स थी। आज के दिन में वो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले जो स्टार्टअप्स जो आ रही हैं, वो जो काम कर रही हैं, वो काम कर रही हैं कि वो कैसे एक क्लीन लेबल प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर्स तक लेके जा सके, जो कि रेडली अवेलेबल हो, मतलब जिसके लिए आपको 6 महीने 12 महीने की शेल्फ लाइफ की जरूरत ना हो, और वो फ्रेश आपके पास पहुंचे। दैट इज वेयर द डायरेक्ट टू कंज्यूमर आपके पास आ रहा है। उसमें बहुत सी ब्रांड्स हैं जो स्पेसिफिक एरिया पे काम कर रही हैं, जहाँ पे उस सेगमेंट का जो भी ईवल है उसको रिमूव करके एक हेल्दी, नेचुरल और नॉन केमिकल प्रोडक्ट आपके तक लेके आ रहे हैं। So that is how the startup is helping. सेकेंड पार्ट है कि प्रोडक्शन में कहाँ पे और कैसे हम इस फूड सेफ्टी को मैनेज करते हैं। मैं डेयरी इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेके ही बात करता हूँ। अगर आप डेयरी इंडस्ट्री पे देखिए तो स्टार्ट होती है एक प्रोडक्ट की, वो होती है अडर ऑफ द काउ से। अगर आप काउ को एक अच्छे से पौष्टिक खाना देते हैं, उसकी अच्छी केयर करते हैं, जिसको हम अपने उसमें कहते हैं हैप्पी मिल्क, हैप्पी काउज हैप्पी मिल्क, सोमैटिक सेल काउंट्स, एफ्लाटॉक्सिन, इन सब चीज़ों का उसके खाने में अगर आप ध्यान देंगे तो जो दूध आपको मिलता है वो वहाँ से ही आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है, राइट? क्योंकि जितना अच्छा खाना आप उतना उसको देंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट आएगा। एक बार उसके अडर से जब दूध निकलता है, उसके बाद आपके घर तक आने तक उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, उसमें आपकी कोल्ड चेन कैसी है, कैसे आप उसको मेंटेन कर रहे हैं ताकि उसका जो नेचुरल फ्लेवर है, नेचुरल टेस्ट है, वो मेंटेन किया जा सके, या उसमें किसी भी तरह से टैम्पर प्रूफ पैकेजिंग के थ्रू उसको डिलीवर कर रहे हैं ताकि बीच में कहीं कोई और उसको एडल्ट्रेट नहीं कर सके, चाहे वो आपके टैंकर्स हैं जो कि फार्मर से आपके प्रोसेसिंग यूनिट तक ला रहे हैं, या प्रोसेसिंग यूनिट के बाद आपसे आपके कंज्यूमर के घर तक जा रहे हैं। हमारे केस में हमने गेबल टॉप इसीलिए चूज किया था क्योंकि फॉर द रीजन ए, it is more recyclable. Yes, glass bottle is also there. There's a lot of people who prefer glass bottle. But from a food safety point of view, we felt that कि कहीं ना कहीं glass bottles में जो है कई बार कांच टूट जाता था या क्रैक आ जाता था, which is always a safety hazard. So which is where we said कि हम इस टेम्पलेट पे जाते हैं। तो अल्टीमेटली एंड टू एंड कोल्ड चेन आप कैसे मेंटेन करते हैं, एंड टू एंड आप प्रोडक्ट को सेफली कैसे कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, सो दैट बीच में कहीं पे उसमें कोई बदलाव ना आए, इज व्हाट एज अ कंपनी, एज अ मैच्योर कंपनी, एज अ कंसर्न कंपनी, वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। Absolutely. Thank you, sir. So these were some valuable insights which we could get only from the industry experts only. So now we are going to be talking about their brands and what exactly are they doing with their brands. So now the questions are more going to be the brand specific one. So let's head on to the next round. First question is for you, sir. Again, sir, आप इंडिया को भारत से कनेक्ट करते हैं, तो how do you ensure that your brand provides authentic products while ensuring the hygiene which is demanded by the modern day customer? Okay. So correct. तो भारत और इंडिया की अगर बात करते हैं तो वो ये जो एक पर्टिकुलर लाइन है वो ब्रांड से रिलेटेड है, और क्योंकि देखिए हमें लगता है कि जब भी कोई ब्रांड बन रहा होता है उसके दो पहलू हैं। एक
प्रोडक्ट है और एक है उस प्रोडक्ट और उस पूरे इकोसिस्टम के अराउंड आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ में, और क्या लगता है। तो जिस तरह से हर एक ब्रांड एक कोई वाइट स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है प्रोडक्ट की साइड में भी, ऐसे ही हमें लगता है कि एक कम्युनिकेशन साइड में भी एक वाइट स्पेस होना चाहिए। एंड तो हमने चूज किया भारत और इंडिया। उसका रीजन बहुत ऐसा, मतलब क्योंकि हम ऐसे कोई ब्रांड का ना तो हमारी एमबी है ना ऐसा कुछ नहीं है, बट हमने सोचा कि कैसे इसको क्रैक किया जाए, इस कम्युनिकेशन को कैसे क्रैक किया जाए। तो उसका आइडिया सिंपल, हमने अपनी जीवन से ही निकाल लिया। मतलब लाइफ में हमारी आधी जिंदगी जो है वो गांव में बीती है और आधी जिंदगी भारत इंडिया में बीती है, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम करते हुए। तो हमें लगा कि ये इसके ऊपर काफी कम्युनिकेशन हो सकती है, काफी सारा कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि एज ए कंट्री भी ये बड़े दो अलग विचारधारा हैं, अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से दिखते हैं, अलग तरह से खाते हैं। फूड की तरफ आ जाते हैं तो हमने कहा कि हम फूड ब्रांड हैं और फूड की सारे ओरिजिन्स, सारी जो सप्लाई चेन है वो भारत में होती है। तो हमें ये समझ में आ गया था कि जो भी फूड अल्टीमेटली, चाहे वो पहले खेत से उगेगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर फाइनली एक कंज्यूमर की टेबल तक पहुंचेगा। तो हम भारत में जो भी प्रोडक्ट जो भारत के हैं, चाहे वो स्टेपल्स हो, चाहे वो स्नैक्स हो, हम उनको मेन स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अब गुड़ है या अचार है या कोल्ड प्रेस ऑयल है, दूध है, मक्खन है, घी है, ये सारे वो प्रोडक्ट है जो एक किसी भी गांव में चले जाइए आप, आज भी उनकी सुबह आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड नहीं मिलेंगे, पर हाथ की चपाती पर बढ़िया सा मक्खन रख के और एक छाछ का गिलास पी के आप अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो हमने कहा इसको, ये जब इसका इतना एसेंस है, इतनी गुडनेस है, तो इसको मेन स्ट्रीम क्यों ना बनाया जाए। और ये सिर्फ एक जोन की बात नहीं है, इसमें प्रोविनांस का भी बड़ा अमेजिंग प्ले है। साउथ में का जो ब्रेकफास्ट है वो अलग होगा, ईस्ट का अलग है, सेंट्रल भारत का अलग है, नॉर्थ इंडियंस का अलग है, ठीक है। तो एज ए ब्रांड का प्रोडक्ट साइड में बहुत बड़ा अम्ब्रेला हो जाता है। इसलिए हमने भारत और इंडिया को चुना अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कई बार ऐसा परसेप्शन है कि भाई अगर ये भारत में बन रहा है तो फूड के अंदर वो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, या फिर कोर्सली उनको बना लिया जा रहा है और डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जा रहा है। तो ये जो थॉट है कि हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंडिया से आती है। तो इंडिया से कैसे आती है कि इंडिया में का जो कंज्यूमर है वो एक ग्लोबल कंज्यूमर है, ठीक है। उसकी नीड, उसकी एक्सपेक्टेशंस, आप कहानी तो भारत की सुना सकते हैं, पर प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनहाइजेनिक प्रोडक्ट उसको दे देंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें एज ए ब्रांड हमें बहुत क्लियर है कि कंज्यूमर कौन है, ठीक है, और उसको किस स्टैंडर्ड का क्या कहते हैं प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे दूध की बात करते हैं, दूध में हमारे फार्म के पास ही हमने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लगाया हुआ है। तो जो दूध जो हमारे खुद का फार्म है और जो भी नेटवर्क ऑफ फार्मर्स है, जब दूध लेके आते हैं तो उसकी एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है जिसमें IoT डिवाइसेस लगे हुए हैं। वो उसको चेक करता है मल्टीपल अडल्ट्रेशन के ऊपर कि इस दूध में आज जो आपके पास पहुंचा है वो क्या है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन था कि नहीं। अगर बाई चांस कोई अडल्ट्रेशन उसमें निकलता है तो उसको फार्म गेट पे ही रोक लिया जाता है। सो जो भी प्रोडक्ट जो जा रहा है कंज्यूमर के पास जा रहा है, उसमें बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भारत है और भारत वाला थॉट है, और प्रोडक्ट की हाइजीन और सेफ्टी के लिए सारे वो जो वर्ल्ड क्लास जो पैरामीटर साइंस और टेक्नोलॉजी के होते हैं वो हम यूज करते हैं। Right. Thank you, sir. Thank you. So for you, sir, my question is that being one of the first company to set up a modern dairy farm, what are the changes which you have come across over the years for the milk production process? Some experience with So, I'll say milk production process में इतने changes नहीं आए, because एक layman term में अगर देखा जाए तो आपने गाय को चारा दिया है, गाय ने दूध दिया है, और that is how the process of production is there. But if you look at the role of technology, तो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, एंड टेक्नोलॉजी में चेंजेस, फॉर एग्जांपल जब हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद मैकेनिकल मिल्किंग, नो ह्यूमन हैंड टच, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायरेक्ट टच, ह्यूमन टच टू द प्रोडक्ट। जैसे पहले क्या होता था कि आज भी होता है कि कन्वेंशनल जो मिल्क है, जो बहुत मिलियंस एंड फार्मर्स से कलेक्ट होता है, वो हाथ से निकाला गया है, बाल्टी में निकाला जाता है, और वो कुछ घंटे ओपन में रहता है। सो और जैसे जब अडर से जो दूध आता है, चाहे वो बफलो हो चाहे गाय हो, तो दैट एवरेज टेम्परेचर इज समवेयर अराउंड 37-38 डिग्री सेल्सियस।
तो वो कितनी देर उस स्टेट में रहता है, उससे क्वालिटी पे असर पड़ता है. तो दिस हैज बीन द प्रैक्टिस ऑलवेज, स्पेशली इन इंडिया, और आज भी चलता है. मेजॉरिटी आज भी मोर देन 99% ऑफ द मिल्क इन द कंट्री कम्स फ्रॉम द सेम सोर्सेज. So उसमें one is when you go into mechanical milking, like the milking parlor. So parlor जब बोलते हैं तो एक space जहाँ पे maybe 6, 12 or more than that गाय एक साथ मिल्क होती हैं. Milk within few seconds it reaches to a bulk milk cooler जहाँ पे वो rapidly chill किया जाता है to 4 degree Celsius. So it maintains the freshness. It brings down the जो 37 degree पे जो दूध निकलता है उसको rapidly chill कर दिया जाता है ताकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना करे और उसको. So this is the mechanical part in milking. Then in 2017 we installed a Israeli technology which basically monitors each and every cow. So वो जो है उन टैग्स के थ्रू हम all the data of the cow, each and every cow, there every 2 hours the data comes to our mobile, to our computer. So that technology basically reads multiple parameters of each animal. तो ये जो चीजें हैं, interference of technology in dairy farming has improved the production. It has improved the life cycle of cattle, the overall growth path of a dairy farm. So this intervention of technology is the key change which has happened in last 10 years in my journey and other dairy farms as well, because ये चीजें अभी आई हैं, पहले इंडिया में ये नहीं थी. पिछले 7-8 सालों में जो चीजें आई हैं वो maybe because the number of organized dairy farms has gone up, so foreign players have come to Indian market, to cater these needs. Thank you, sir. Now coming on to Siddharth, sir. Sir, our viewers would want to know, how do you test the quality of the milk and what do you do with the extra milk? आप उसको डिस्पोज करते हैं, यूज करते हैं, किस तरह करते हैं? प्लीज वी वुड वांट टू नो. तो क्वालिटी के लिए तो बेसिक टेस्ट हैं, उसके फैट है, एसएनएफ है, अडल्ट्रेशन है, केमिकल टेस्टिंग भी होने लगी है उसके अंदर. बट लगभग सारा का सारा मिल्क ही हमारे पास हमारे सैटेलाइट फार्म से आने लग रहा है. ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है. तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जितने भी इंटीग्रेंट्स है उसके, लाइक ड्राई पाउडर या फिर साइलेज या फिर फीड, वो सारा ही इनपुट हम फार्मर को अपने पास से देते हैं. हमने एक हाउस लगा कि वो फैसिलिटी सारी फीड हम अपना खुद का रेडी करते हैं, वही फार्मर को देने लग रहे हैं. बात रही सरप्लस की. सरप्लस के लिए देखो प्रोडक्ट हमारा पेरिशेबल है. अब उसको मोर पेरिशेबल से लेस पेरिशेबल में चेंज करने की कोशिश करते हैं. मिल्क से उसका बटर बना लिया या घी बना लिया या पनीर बना लिया, तो जो 2 दिन में खराब होने वाला था उसके पास मुझे एक शेल्फ लाइफ मिल गई. उसके बाद भी जो कुछ वेस्ट निकलता है, पनीर की कटिंग के टाइम कटिंग के वेस्ट निकल गया, तो हमारे पास फार्म है. फार्म के ऊपर हमारे पास हीफर्स है, काफ है, तो उनको फीड कर देते हैं. तो भी उनके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट है. या फिर प्रोटीन पनीर निकला तो उसके साथ जो वे निकला वो भी उनको फीड करते हैं. तो वेस्टेज ऐसा कुछ नहीं है सर. ओके, थैंक यू सो मच सर. नाउ कमिंग टू कृष्णांक. Sir, so basically आप fruits and vegetables source करते हैं from different farmers, right? How do you ensure the right quality? Alright, so that's a very interesting question. So इसको हमने कैसे reverse engineer करा वो बताता हूँ. So I personally am a big fan of राम जी. Right, so राम जी का मानना था कि माता ने जो बोल दिया वो ही ट्रूथ है. कि माता ने बोला कि वनवास जाओ तो वनवास जाओ. Similarly जब हमने स्टार्ट करा ओके इंडिया, so our गोल आर एम वाज कि घर में जो माँ है, माँ ने जो डिफाइन कर दिया वही सही है. सो हाउ रिवर्स इंजीनियर इट इज कि जो चीज एक माँ पिक करेगी फॉर आवर होम, राइट. जब हम सब्जी ठेले पे जाते हैं तो सारा इंडिया का 97% मार्केट आज भी ऑफलाइन है, राइट. सो आपकी घर आपकी मॉम या whoever buys वो हैंड पिक करते हैं सब कि भाई ये 1 किलो तोल दो, ये 2 किलो तोल दो. सो इसी को हमने फिर we converted it to engineering कि अच्छा that means कि we speaking this तो B2C में brick की रेटिंग ये होनी चाहिए. So brick actually tells about firmness and stuff about organic food. And next is of purity. Purity में क्या होता है कि अच्छा जी इसमें कोई भी pesticides and कुछ चीज नहीं होनी चाहिए. So we do 2 levels of check. पहला हो गया कि प्री प्रोक्योरमेंट कि लैंड एक्चुअली प्योर था. उसके बाद हमने जब प्रोक्योर कर लिया तो उसको ग्रेड इस तरह से करा कि अब जो घरों में सामान जा रहा है
वो उसी स्पेसिफिकेशंस का हो जो कि एक इंडियन मदर पिक करती है। तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी पे अलग अलग लॉजिक्स लगते हैं। जैसे कि एप्पल की अगर मैं बात करूं तो अगर हमको वो इंडस्ट्री में देना होता है एप्पल जैम या वो वहाँ पे, तो वो सॉगी एप्पल, सॉफ्ट एप्पल प्रेफर करते हैं, छोटे साइज प्रेफर करते हैं। वेराइज जो हम कंज्यूमर को देते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड साइज है कि वो मीडियम साइज का हो एंड फर्म हो, राइट। तो हमने उस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करे और हमारे फार्मर्स को सारी चीजें पता है, सो हम लॉट तो पूरा लेते हैं, राइट। सो वी डोंट गिव एनी रिजेक्शन टू द फार्मर बिकॉज फूड है, राइट। बट उसके बाद ये ग्रेडिंग उस तरह से होती है कि जो घरों में जाए वो ये जाए एंड जो प्रोसेस होने के लिए जाए वो ये जाए। हम इस तरह से इसको मेंटेन करते हैं। Okay, very well put up, sir. Thank you. Now, coming to Shan, sir. So, Happy Nature commits 100% clean label breakfast essential products. So, how do you maintain that at the farm level? So it has been maintained at again दो, जैसे प्रशांत ने बोला, ये दो लेवल पे मेंटेन होता है। एक होता है सोर्स पे, जहाँ से आपका दूध आ रहा है या आपका फ्रूट्स आ रहे हैं जो कि किसी चीज़ में जा रहे हैं, या कोई और एलिमेंट है, वीट है, मल्टीग्रेन दलिया जैसे हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो हर एक है कि आप उसको सोर्स पे चेक करते हैं और सोर्स पे उसे कंट्रोल करते हैं। तो वो फार्मर से आपके पास आ रहा है या एफपीओ से आ रहा है, तो यू इंश्योर कि वहाँ पे वो पहला लेवल ऑफ चेक होए। सेकेंड है कि जब वो प्रोड्यूस आपके पास आया, देन एट दैट लेवल ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लेवल पे क्या टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि मिल्क के केस में जब मिल्क उनके पास सैटेलाइट फार्म से आता है तो उस पर एडल्ट्रेशन का टेस्ट होता है, उसके बाद उस पर फैट एसएनएफ जिससे उनका पेमेंट होता है वो टेस्ट तो होता ही होता है, प्लस बाकी चीज़ें जो हम टेस्ट कर सकते हैं उन टेस्ट को अपने लेवल पे उसको करते हैं। और फिर रैंडम बेसिस पे हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने के बाद एक रैंडम बेसिस पे एक लैब के पास ही भेजते हैं, ताकि जो भी हमने अपने टेस्टिंग प्रोसेस बनाए हैं उसको वैलिडेट करता है कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट में वो चीज़ टेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, या कहीं पे गैप्स है जिसकी वजह से मेरे फाइनल प्रोडक्ट में कहीं कमी आ रही है। तो ये 3 लेवल पे आप अपने प्रोडक्ट को, चाहे वो मिल्क हो या कोई और भी प्रोड्यूस हो, उसको मैनेज करने का ये बेस्ट मेथड है। इसमें रैंडम बेसिस पे आप फाइनली अपने प्रोडक्ट से निकाल के एक NABL रेटेड लैब पे भेजते हैं, जिसके ऊपर वो आपको टेस्ट करके बताता है कि जो चीज़ आप एक्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हैं कस्टमर्स को वो है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं 100% केमिकल फ्री या क्लीन लेबल, विच मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रिजर्व्स की, जैम्स की बात करता हूँ। अगर आप एक हमारे प्रिजर्व के पीछे देखेंगे, इंग्रेडिएंट में केवल 3 ही चीज़ें हैं, एक फ्रेश फ्रूट है, एक लाइम जूस है और शुगर है, राइट। देयर इज नो प्रिजर्वेटिव इन्वॉल्व, देयर इज नो सिंथेटिक कलर इन्वॉल्व, देयर इज नो सिंथेटिक फ्लेवरिंग इन्वॉल्व, देयर इज नो जेलिफिकेशन एजेंट इन्वॉल्व। सो एक प्रोसेस ऑफ R&D के थ्रू जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो पहली बात तो आपने उन सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया। अब आपके इन इंग्रेडिएंट में कहाँ से कोई केमिकल आ सकता है, वो या तो फ्रूट से आ सकता है, क्योंकि फ्रूट पर अगर पेस्टिसाइड्स है तो आपके प्रोडक्ट में आएंगे। तो दैट्स वेयर यू गो बैक एंड से कि मेरी सोर्सिंग में तो वो प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपको क्या कौन बताएगा, जब आप फाइनल टेस्टिंग करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे अगर आपको पेस्टिसाइड या कोई भी और चीज़ दिख रही है तो उसका सोर्स कैन बी फ्रूट, और मे बी योर शुगर हैज सल्फर और समथिंग लाइक दैट। So that is how you will find out and you make your processes in a manner कि आपने जो R&D करके एक प्रोडक्ट बनाया है उसको एंड स्टेज तक कैसे सेफ और क्लीन बना सकते हैं। Okay, thank you, Mohammed. So we have discussed a lot about the dairy industry and these 5 popular brands which we have just talked about. So the discussion has been so informative and valuable, and I'm sure our audience is going to love it. So now let's get to know these 5 founders as 5 different people with different interests and preferences. So our third round is going to be pick one round. So it's going to be a little lighter round. So I'll start with Dulab sir. We'll be having some questions. We'll have 4 questions per person. And they will be related to your interests and hobbies, and you could choose between the two so that our viewers and we each other can know each other better. Sure. Okay. So your first question is laddu or pickle? लड्डू, उत्तर प्रदेश और दिल्ली? उत्तर प्रदेश, एनी टाइम। खाना बनाना या खिलाना? खाना,
खाना खिलाना, सॉरी खाना खाना। Okay, now courtesy Shark Tank, Aman और विनीता? ओह ये तो कंट्रोवर्शियल है। दोनों एक ही चूज कर सकते हैं। जी। दोनों। Thank you so much, sir. Let's come to you, sir. Cash or check? Check. English or Hindi? Hindi. पनीर और आलू? Alu. Table tennis or cricket? Cricket. That was fast. That was quite well. So that's the first question. Okay. Ghee or makhan? घी, Hand milking or machine milking? हैंड मिल्किंग, Morning person or night person? मॉर्निंग पसंद, Owning a farm, justified. Gym or akhada? जिम, Okay. For you, Krishnan sir, milkshakes or smoothies? None actually. Okay. Breakfast or lunch? Heavy breakfast. Heavy breakfast. Sprint or marathon? Sprint. Movies or web series? Web series. That's a young answer. So coming to you, Vishal sir, robotics or metallurgical engineering? So I am a metallurgist by profession. Robotics is my son's passion, so in a way, dono. We have done our research. Sattu or protein shake? Sattu. Okay. Chach or lassi? Courtesy Happy Nature. Lassi and chaat both. The both of them. Okay. IIT or IIM? IIT. Okay. Thank you so much. I hope we got to know each other a little well. Thank you. Thank you so much for being here with us, and thank you for being a part of this discussion. And we were glad to have you. Thank you so much.